Okay, I'm not able to join. Okay, students. So till now we discussed trigonometry, whatever was there in till your NCERT standard book. Today we will study some applications of trigonometry which are not directly present, in your NCERT book. So, how many of you tried doing NCERT book? How many of you have done some of the portion, exercise or something? Someone to exercise, three, four exercise, something. Doing? Completed. How many found it helpful? I hope your many doubt is clear. Like now you are getting confidence in trigonometry after solving NCERT, right? Easy, right? Simple था बहुत. Very easy, helpful also. Because you have done NCERT, so it will help you a lot. Now your basic concepts are clear. Now we'll go ahead with further concepts. See now, till now we have studied trigonometry for right triangle. Suppose I am having a right triangle. This triangle ABC. So to find, see now this opposite is to C is, see this angle is C. So opposite to angle C I take small c. Opposite to angle B I take small b. Opposite to angle A is I take small a. So this is a standard pattern of in a triangle that angle ABC side opposite to angle is always represented by capital letters and opposite side is denoted by small letters. So it's very easy. If I want to find sine A, I can very easily find A by B. Very easily I can find. But now suppose I don't have right angle triangle. Suppose I have normal triangle. This is my normal triangle having angle A, B and C. Having sides opposite A, B and C. Now if I want to find sine A here, cos A here, tan A, in terms of these sides, in terms of these sides, in terms of these sides. So it is little complicated. We cannot directly apply this formula. Till now, whatever we studied in our 10th class and in 11th class till now. Now here we have to go further in our understanding and concepts to find sine A, cos A, tan A for acute angle or obtuse angle. Similarly, to find sine A by 2, cos A by 2, tan A by 2. These also we will find for this triangle in terms of small a, small b, small c. So now today we will discuss, today and tomorrow we'll try to discuss at least some 15 to 20 formulae. Very simple, not tough. जैसे आपने अभी पिछले कॉन्सेप्ट में 15 to 20 फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे यहाँ पे भी you will study 15 to 20 formulae and they are very easy. Okay, so now first thing is sine formula. Now students, if suppose I have a triangle, if I have a triangle A, B, C, this is small side A, this small side B, this small side C. Can I find area of triangle? Can I find area of triangle? Can I find area of triangle? How will I find area of triangle? I know three sides. I know three sides. I don't know these angles. I don't know the value of these angles. These angles I don't know. I just know three sides. By Heron's formula, yes. How you will find area? Under root s, s minus a, s minus b, s minus c. So this is our first formula. Out of 15, one formula is done. Now let's come to second formula. Now in case, suppose I know I know two sides.
Suppose this is my triangle ABC. I know these two sides A and B. Sorry, A and C. And I know this angle B. I know this angle B. Now, is it possible to find area? Is it possible to find area? How I'll find area? See, I need to know this perpendicular. Area of triangle is half base into height. Now, how I'll find area? Half into base. What is base? A. Now, what will be this height? Suppose this is AD. Suppose this is AD. What will be this height? Can I write this height as C sine B? Can I write this height as C sine B? Resolution. Remember resolution x component? Yes. Drawing perpendicular then applying trigonometry. C sine B. What I will get? Thank you, Yugans. Very good. Kaustubh. Understood. Half AC sine B. This second formula. I know two sides and I know one angle. Similarly, I can do similarly half AB sine C. Similarly, I can do half BC sine A. ओके, कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कि दो बच्चों को नहीं आया? कितनों को आया ये समझ में? कुछ को आया, कुछ को नहीं आया। चलो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके किसी को भी, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आया। ओके नाउ, आपको ये पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है? क्या ये आपको ये पता है? हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी, ए बी सी। अब मेरे को देखो बेस, सपोज मैं ये ए को बेस ले लेता हूँ। अब मैं एल्टीट्यूड बनाता हूँ एडी, एडी एल्टीट्यूड बनाता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरा हाइट, और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस। अगर आप एच, मेरे को सी दिया है, मुझे ए दिया है, मुझे एंगल बी दिया है, आई नीड टू फाइंड एच। आई कैन फाइंड एच। हाउ आई कैन फाइंड एच? I can find h like sin b is equal to perpendicular by hypotenuse h by c। h क्या हो जाएगा? c sin b। अब मेरी हाइट है हाफ इंटू बेस, बेस ए हो जाएगा। हाइट मेरा h है, जो क्या हो जाएगा? c sin b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ ए सी साइन बी। सिमिलरली मैं बाकी दो साइड और एंगल के लिए भी निकाल सकता हूँ, ए बी साइन सी, बी सी साइन ए। आया समझ में स्टूडेंट्स? वेदांत को आ गया? ओके, सोहेल, आलोक, अदर स्टूडेंट्स, हृदय, सबको आ गया? चलो ओके, वेरी गुड। आया? सो अभी हमने वन मोर टाइम, चलो ठीक है। देखो मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है एक एंगल, मुझे एक एंगल दिया है और दो साइड्स दिए हैं। मुझे इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, ए बी सी का एरिया निकालना है, ए बी सी का एरिया निकालना है। कैसे निकालूंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट है मेरी h। अब देखो मुझे क्या दिया? एंगल बी दिया है, मुझे सी दिया है साइड। मैं क्या करूंगा? साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर h हो जाएगा, हाइपोटेनियस c हो जाएगा। अगर मैं ये ट्रायंगल लूं तो h इक्वल टू सी साइन बी, h इक्वल टू सी साइन बी। अब देखो बेस क्या है मेरा? अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ले, इसका बेस क्या है? बेस है मेरा a, हाइट क्या हो जाएगा? c साइन b। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए इंटू सी साइन बी। क्या हो जाएगा? हाफ ए सी साइन बी। अब मुझे एक ट्रायंगल में ए दिया है, सी दिया है, बी दिया है, तो मैं निकाल सकता हूँ हाफ ए सी साइन बी। इस ट्रायंगल, सपोज एक ट्रायंगल में क्या दिया है मुझे? ए दिया है, बी दिया है और ये सी दिया है, हाफ ए बी साइन सी। सपोज एक ट्रायंगल में मुझे ए दिया है, सी दिया है और बी दिया है, ये एंगल ए दिया है, ये साइड बी और ये साइड सी। क्या लूंगा? हाफ बी सी साइन ए।
मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हो तो मैं जब भी एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, आया समझ में आप सबको? चलो ठीक है, सोहेल आ गया। चलो, वेरी गुड। चलो तो अभी तक हमने क्या फॉर्म, मैं सब इरेज कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े? मैंने अभी तक दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला जो आपको पहले से आता था, हीरोन्स फॉर्मूला, क्या? एरिया इक्वल टू एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दूसरा फॉर्मूला, एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ए बी साइन सी और हाफ बी सी साइन ए, देखो साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। अगर साइड ए बी है तो एंगल सी होगा। अब थर्ड साइन फॉर्मूला, देखो अब आपको ये प्रूफ करना है। नाउ यू हैव टू प्रूफ, व्हाट यू हैव टू प्रूफ? a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b is equal to c by sin c. This is sine formula. You have to prove it. You have to use this. आपकी इसकी हेल्प से मिलेगा। कैसे करेंगे? सपोज आपको ये क्वेश्चन आता है, हाउ यू विल डू इट? चलो कुछ हिंट दो, कोई भी एक। क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आ जाएगा। वेरी गुड शिवम। मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अगर, हाफ ए बी साइन सी इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए। अब देखो ये और ये दो को ले लेता हूँ, हाफ बी सी साइन ए इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी। अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ हाफ कट जाएगा, बी भी कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हाफ हाफ कट जाएगा, सी सी कट जाएगा। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ फर्स्ट वन को, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा मुझे? साइन सी बाय सी इज इक्वल टू साइन ए बाय ए। सिमिलरली मैं सेकेंड वाले को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन, ये बी के नीचे आ जाएगा, ए के नीचे। सिमिलरली यहाँ पे ए के नीचे आ जाएगा, साइन ए के नीचे, सी साइन सी के नीचे आ जाएगा, अपॉन साइन बी बाय बी। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी। दिस इज साइन फॉर्मूला। ओके, कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड? कोई किसी को कोई डाउट? ओके, तो ठीक है, एक क्वेश्चन करो फिर। मेरा एक ट्रायंगल है, ये है मेरा 60 डिग्री, ये है मेरा डायग्राम। शिवम, आई एम मेकिंग डायग्राम। कौन सा डायग्राम? ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये मेरा 45 डिग्री। तो इसका ये एंगल ए है, ये साइड ए है, ये एंगल बी है, ये साइड बी है, ये एंगल सी है, ये साइड सी है। और ये हो जाएगा मेरा 100। आई तो चेंज पे 65, 45, 75। Okay, now you know this as, suppose this 2 units. Can you find x? Can you find this x? Find x.
हो जाए तो आंसर बता देना मुझे। शिवम, आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया आपका? और देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 60 का ऑपोजिट 2 है, 45 का ऑपोजिट x है, तो क्या हो जाएगा, साइन 60/2 इज इक्वल टू, या उल्टा लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, 2/sin 60 इज इक्वल टू x/sin 45। देखो एंगल और साइड का रेशो हमेशा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल और साइड का रेशो हमेशा फिक्स रहता है। तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2 × sin 45, 2 × sin 45, 2 × sin 45 अपॉन sin 60, x हो जाएगा 2 × 1/√2 इंटू √3/2, x इक्वल टू 4/√6। तो ऐसा आंसर आ जाएगा। या फिर अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है, 2√6/3। कितनों को आया ये, हाउ मेनी गॉट दिस आंसर, हाउ मेनी गॉट, कौस्तुभ गॉट, शिवम गॉट, कितनों को आगे आंसर या कितनों को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इजी है राइट, इजी है। देखो आप ये y भी निकाल सकते हो, बट इसके लिए आपको sin 75 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ यू नो sin 75 यू कैन इवन कैलकुलेट y। ठीक है, अब देखो, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। ये मेरा ट्रायंगल है, ये 2 है, ये 3 है, ये है 30 डिग्री। कैन यू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल? कैन यू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल? ये ट्रायंगल एबीसी है, एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, एंगल 30 डिग्री है। कैन यू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल? कैसे करेंगे, मेरे को तो साइड्स दिए हैं और बीच का एंगल दिया है, कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू 2 × 3 इंटू sin 30, हाफ इंटू 2 × 3 इंटू 1/2, 1.5। इजी है, इजी, इज नॉट टफ, दिस इज समथिंग न्यू, इट्स नॉट टफ, इट्स न्यू। टफ नहीं है, इट्स जस्ट न्यू है, आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है ये, बस याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इजी बहुत है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन। नाउ मोस्टली इंटरनेट प्रॉब्लम है सोहेल, देखो तुम्हारा योर नेट इज कनेक्टेड प्रॉपरली, जस्ट टेक केयर।
एक ये, कैन यू फाइंड एक्स ए एंड बी। हो जाए तो बताना। 90 2√3 and 2। तो ठीक है, देखते हैं। x तो आ जाएगा, देखो 60 + 30 + x = 180 डिग्री, राइट। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। x क्या आ जाएगा, 90। x 90 आ गया। अब देखो, a/60 इज इक्वल टू a/sin 60 इज इक्वल टू b/sin 30 इज इक्वल टू 4/sin 90। b और उसका ऑपोजिट साइन, a और उसका ऑपोजिट साइन, 4 और उसका ऑपोजिट साइन, क्या हो जाएगा। a/sin 60 = b/sin 30 = 4/sin 90। a/sin 60 क्या हो जाएगा, √3/2 = b/1/2 = 4। अब इक्वेट कर दो, a को 4 से, b को 4 से, क्या हो जाएगा, a = 4 × √3/2, b = 4 × 1/2, क्या आ जाएगा, 2√3 and 2। तो a आ जाएगा 2√3, b होगा 2। b मेरा 2√3 आ रहा है, शिवम एंड रोशन। आपका b 2 आ रहा है, देखो कुछ तो गड़बड़ हुई है। और c कैसे आ गया, अच्छा ये c, तो ये है, a निकालना था ना, कुछ तो गड़बड़ हुई है। देखो शिवम रोशन, ठीक है, कितनों को आ गया, हाउ मेनी गॉट, हाउ मेनी अंडरस्टूड। ठीक है, अभी हमने साइन का रिलेशन निकाला, चलो कॉस का रिलेशन निकालते हैं, कॉस का। ठीक है, लेट्स डू फॉर कॉस। ओके, नेमिंग गलत होगी, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, नाउ फाइंड, सो प्रूव दैट, ये कॉस फॉर्मूला है, जैसे साइन फॉर्मूला था, ये कॉस फॉर्मूला है, फोर्थ ना, राइट। प्रूव दैट कॉस a इज इक्वल टू b² + c² - a² अपॉन 2bc। ये तो देख के बहुत डर लग रहा है, सोचोगे क्या दे दिया सर ने। तो देखते हैं कैसे होगा। सपोज ये a है, ये b है, और ये c है, ठीक है। अब ये मेरा, सपोज ये परपेंडिकुलर है, ये साइड मेरा a हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा लेंथ मेरा b हो जाएगा, और ये पूरा लेंथ मेरा c हो जाएगा। मुझे इतना लेंथ निकालना है, और ये हाइट निकालना है। नाउ हाउ आई विल फाइंड दिस लेंथ, this length will be, now carefully see,
बी माइनस सी कॉस ए। बी माइनस ये लेंथ कितना होगा, सी कॉस से इतना लेंथ हो जाएगा, राइट। सी कॉस से इतना लेंथ हो जाएगा, ये पूरा बी है। ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी कॉस है। और ये हाइट क्या हो जाएगी, सी साइन ए। कितनों को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, हाउ मेनी अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट? ओके, साक्षी को थोड़ा डाउट है। ओके, सोहेल आया समझ में, आलोक, अनगा, वेदांत, युवांश। तो ठीक है, चलो ठीक है, अगेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन। तो समझना बहुत जरूरी है। इसका एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। चलो मेरे को ये ट्रायंगल दिया है, मेरे को ये ट्रायंगल दिया है, इसका बेस है, इसका बेस ये बी हो जाएगा पूरा। मैं हाइट निकालता हूँ, हाइट, ये मेरी हाइट है, परपेंडिकुलर मैंने बनाया, ठीक है। ये साइड मेरा स्मॉल सी है, ये साइड मेरा स्मॉल ए है, ठीक है। अब देखो मुझे इतना, ये देखो बी और ये डी ले लो सपोज, बी डी ए इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी डी ए इज 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। अब देखो बी डी ए 90 डिग्री है, तो मेरा बी डी ए पूरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा, ये एंगल मेरा ए हो जाएगा, दिस इज एंगल ए। अब देखो ये बी डी हाइट क्या हो जाएगी, बी डी क्या हो जाएगा, सी साइन ए। कैसे, देखो साइन ए इज इक्वल टू बी डी बाय बी ए, तो बी डी क्या हो जाएगा, बी ए साइन ए। दिस इंप्लाइज बी डी इक्वल टू बी ए साइन ए, और बी ए क्या है मेरा, सी है। सिमिलरली मेरा क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू सी कॉस ए। तो ये लेंथ हो जाएगा मेरा सी कॉस ए, ये लेंथ हो जाएगा सी साइन ए। तो ये बच्चा हुआ लेंथ क्या होगा, ये बच्चा हुआ लेंथ हो जाएगा बी, ये पूरा लेंथ बी है, ये हटा दूंगा, बी माइनस सी कॉस ए, और ये हो जाएगा मेरा सी साइन ए, और ये मेरा ए है। अब देखो, अब आया समझ में। अब देखो, अब मैं ट्रायंगल एबीसी लेता हूँ, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी क्या हो जाएगा, सी साइन थीटा स्क्वायर और सी साइन ए स्क्वायर प्लस सी डी, सी डी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी कॉस ए का होल स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2bc कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो सी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अब मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई करता हूँ, आई एम सॉल्विंग हियर, bc कॉस ए को मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, 2bc cos A is equal to
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये आ गया मेरे। देखो स्टैंडर्ड, देखो एक और फॉर्मूले का पैटर्न। सिमिलरली इफ आई राइट कॉस बी, क्या होगा? देखो तो एंगल के साथ साइड वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बाकी तो ऐड हो गए, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सिमिलरली कॉस सी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए था तो बी सी डिवाइड हो रहे थे, बी सी ऐड हो रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे बी था तो ए सी ऐड हो रहे थे, ए सी डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे सी होगा तो ए बी ऐड कर रहे और ए बी डिवाइड करेंगे। These are my 3 cosine formula। ठीक है, ध्यान से देख लो। किसी को कोई डाउट? कोई स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आया, कुछ कोई डाउट है? कितनों को आ गया समझ में ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड? ओके, लास्ट स्टेप। आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आई विल गो वेरी स्लोली। ओके, अब को डाउट है लास्ट स्टेप में? ओके, अब कहाँ पे कौन से स्टेप में डाउट है आपको? ये वाले स्टेप में या इसके पहले या बाद वाले? बिफोर बीसीडी, यहाँ पे, फ्रॉम यहाँ पे, फ्रॉम हेयर। अब यहाँ से डाउट है, बताओ। तो बोलो भाई। बीसीडी यही दिख रहा है मुझे, यही होगा। ठीक है, अब देखो ये एल्टीट्यूड बनाया मैंने, तो एंगल ट्रायंगल बीसीडी मेरा, ट्रायंगल बीसीडी मेरा राइट एंगल है। देखो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल एल्टीट्यूड बनाने से एडी इक्वल टू सी कॉस ए। अब देखो कॉस ए क्या है मेरा? कॉस ए क्या है मेरा? एडी अपॉन ए बी। कॉस ए क्या है? एडी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिस implies AD is equal to AB cos A। AB क्या हो जाएगा मेरा? C हो जाएगा और ये cos A हो जाएगा। देखो जब भी मुझे हाइपोटेन्यूस दिया होता है, अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूस इंटू साइन ले लेता हूँ, और बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस ले लेता हूँ। देखो हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिकम्स बेस, हाइपोटेन्यूस इंटू साइन ऑफ एंगल बिकम्स परपेंडिकुलर। तो वही मैंने किया है। आए समझ में? अब है सोहेल। अब देखो BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा क्या है? C sin थीटा। बेस क्या है मेरा? ये पूरा B है, B में से C cos से हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? B माइनस सी कॉस ए का होल स्क्वायर। और नॉर्मल इसको सॉल्व कर दिया, A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऐड करके प्लस 1 कर दिया, सी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2bc कॉस से आ जाएगा। अब फिर सोहेल आया समझ में? B2, व्हाट इज B2? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा